السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، ہمارا یہاں آج کا جمع ہونا ایک نہایت اہم دن ہے اس پورے ہندوستان کے لیے، یہاں کی پوری عوام کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے، اور خاص طور سے ہم اس بات کو جان لیں کہ اس ہندوستان کے اندر 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں، لوگوں کی آزادی کے اعتبار سے یا لوگوں کی قربانی کے اعتبار سے۔ اور اس ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو حکومت تھی، اس حکومت سے آزادی حاصل کرنا اور انسان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ آسان نہیں تھا۔ اس کی آزادی کے لیے، اس سے چھٹکارے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئیں، اور انہی قربانیوں کا جو مظہر ہے وہ نمبر 15 اگست کا دن، جسے ہم یوم آزادی کے نام سے جانتے ہیں، یعنی انگریزوں کی غلامی سے، ان کے ظلم و جبر سے، ان کے استبداد سے جو اس ہندوستان کے عوام کو جو آزادی ملی، وہ 15 اگست کا دن، جسے انڈیپینڈنس ڈے کہا جاتا ہے، اور اسے یہ آزادی کا دن سن 1947 جسے یوم آزادی کے طور پر ہم مناتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس ہندوستان کے اندر جو دوسرا جو سب سے اہم دن ہے وہ 26 نومبر ہے، 6 نومبر، جسے سنویدھان دیوس کہا جاتا ہے، کانسٹیٹیوشن ڈے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز، جو تیسرا دن ہے، یہ آج کا دن 26 جنوری، جسے ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے، یوم جمہوریہ، یعنی جس دن سنویدھان یعنی آئین جو ہے جس دن اس ہندوستان کے اندر لاگو ہوا، اسے یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو یہ اس کا معاملہ کہ یوم جمہوریہ جو ہے یہ 26 جنوری کے اندر 26 جنوری سے اسے شروع کیا گیا ہے، جبکہ اس کی شروعات اور اس کے بنانے کی جو تاریخ بڑی اہم ہے۔ لگ بھگ اسے بنانے میں 3 سال لگے، 2 سال 11 مہینے 18 دن، 3 سال میں 12 دن کم۔ اور اس کے تعلق سے دوسری چیز اگر آپ دیکھیں گے تو جو اس کی کمیٹی بنائی گئی تھی، یہ اس کمیٹی نے لگ بھگ دنیا کے اندر 60 ملکوں کا دورہ کیا۔ 60 ملکوں کا دورہ کرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر سے جو اچھی اور صحیح چیزیں اور جو زیادہ قابل جو چیزیں تھیں اس کو لے کر کے ہندوستان کے اس آئین کو بنایا گیا۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں، سب میں سب سے بہتر آئین ہندوستان کا آئین ہے، سب سے بہتر قانون ہندوستان کا قانون ہے۔ اور اگر آپ اس کی لاگت پہ غور کریں گے تو اس دور کے اعتبار سے سن 46 میں، اس دور کے اعتبار سے 60 پر 4 لاکھ روپے اس پر خرچ ہوئے تھے اس قانون کے بنانے میں، جبکہ اس دور میں آپ دیکھیں گے اتنی سستی ساری چیزیں تھیں، لیکن اس کا دورہ کرنے میں اور اس پر خرچ کرنے میں یہ 290 پر 9 لوگوں کو ملا کر کے اس کی کمیٹی بنائی گئی، لگ بھگ 300 لوگوں کو ملا کر کے کمیٹی بنائی گئی، جن لوگوں نے اسے نفاذ کرنے میں۔ اور سنویدھان کے تعلق سے دوسری چیز آپ دیکھیں گے، اس کے اندر 390 پر 9 آئین ہے۔ اسی لیے اس ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہر مذہب کے لوگوں کے اعتبار سے ہر ایک کو سکون سے اپنی زندگی بسر کرنے کا ادھیکار دیا اس قانون نے۔ اور اسلام اس چیز سے ہمیں آگاہی کرتا ہے کہ انسان جہاں بھی رہے، چاہے جس ملک میں رہے، چاہے جس سرزمین پر رہے، وہ اس سرزمین کے تعلق سے کبھی غداری نہ کرے۔ یہ ضروری ہے، کیونکہ ہر سرزمین پر انسان بستے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق بستی ہے، تو اس لحاظ سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی فساد یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی اس کے تعلق سے نہ ہو کہ جس سے کسی دوسرے کے لیے نقصان پہنچے۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس قانون کے نفاذ میں ایک مسلمان کا عمل کیا ہونا چاہیے، یعنی اس قانون کے نفاذ میں ایک مسلمان کے لیے اس کے فرائض کیا ہیں، دیش بھکتی کا یا اسی طریقے سے دیش کے تعلق سے وفاداری کا، تو اس کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ 3 چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔
कि अगर एक आदमी देश के ताल्लुक़ से, हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से, उस सरज़मीन के ताल्लुक़ से अगर वफ़ादारी का सबूत देना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहली वफ़ादारी यह है कि जिस मुल्क में वो रहता है और इस मुल्क के ताल्लुक़ से इसके आइन की पासदारी करे, जो भी क़वानीन हैं। और आप देखेंगे कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिस कानून के एतबार से सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं, किसी भी मज़हब के ऊपर किसी भी किस्म का कोई रेडिकेशन हो, यानी किसी के मज़हब पर बिल्कुल कोई दखल अंदाजी नहीं की गई है, बल्कि एक दूसरे को सुकून से रहने का जो आइन बनाया गया है उसी के ताल्लुक़ से इसे नफाज करना ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहली चीज़ ये कि अगर इंसान जो है वतन का और अपने मुल्क का वफ़ादार होना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के या हिंदुस्तान के जितने भी क़वानीन हैं उन क़वानीन को अपने अंदर उसकी पासदारी उसके लिए ज़रूरी है। और उस पासदारी के लिए ये भी ज़रूरी है कि उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर वो नाफिज करें। जो भी कानून उसके ताल्लुक़ से, जिस कानून का यानी ऐसा कानून कि जिससे उसके मज़हब पर कुछ असर ना पड़े, तो उसके लिए वो ज़रूरी है कि उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर वो नाफिज करें। इसके ताल्लुक़ से 2-3 चीज़ों का हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इसके नफाज के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर या अपने इलाके के अंदर या जहाँ पर वो रहता है उसके लिए अहले इल्म ने जो इसकी वजाहत की है वो 3 चीज़ों की वजाहत की है कि जोन ऑफ कंसर्न और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस और जोन ऑफ कंट्रोल। यानी देशभक्ति और आइन की पासदारी के लिए ज़रूरी है कि एक मुसलमान या एक इंसान जो है इन तीनों चीज़ों को जाने हो। और जोन, सबसे पहली चीज़ ये जोन ऑफ कंसर्न ये है कि एक ऐसी जगह कि जहाँ पर उसकी ताकत ना हो कुछ करने की, लेकिन उसके बावजूद वो तसव्वुर करे कि वहाँ लोगों पर जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और उनकी ज़िंदगी परेशानी में है, लेकिन उसके बावजूद इसकी हैसियत नहीं वहाँ पर कुछ करने की। और उसकी मिसाल जो है इस तरीके से देते हैं कि नॉर्थ कोरिया का मामला है, किस तरीके से लोग उस आदमी के साथ रहते होंगे। लेकिन अब यह है कि जोन ऑफ कंसर्न इसीलिए कहा गया उसको कि अब कुछ ऐसे इलाके हैं या ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर उस तरीक़े का मामला है कि लोग इतनी मुसीबत में हैं। अच्छा, अब मुसीबत में हैं लेकिन अब हम वहाँ के लिए कुछ नहीं कर सकते वहाँ के लिए, लेकिन कुछ ना करने के बाद भी उनका दर्द रखना हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई मौका या ऐसी कोई जगह हमारे इल्म में या हमारे कंट्रोल में आई तो फिर वहाँ पर हमें उसकी इस्लाह या हम उसके लिए जो कुछ भी करना चाहेंगे करेंगे उसको। अच्छा, ऐसी जगह पर इंसान जो है जहाँ पर उसका बस ना चले उस पर कोई भी कदम उठाने से मना किया गया। जहाँ पर उसकी ताकत ना हो या उसके कदम उठाने से ख़ुद वो मुसीबत में फंस जाए तो ऐसी जगहों पर जोन ऑफ कंसर्न जो है, ऐसी जगहों पर कुछ करने से उसे मना किया गया है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है कि जोन ऑफ इन्फ्लुएंस, ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ये है कि इंसान वहाँ पर ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता है लेकिन उसका कुछ असर है वहाँ पर। मसलन एक जगह उसके शहर से दूर इसी हिंदुस्तान के अंदर या उसी मुल्क के अंदर जिस मुल्क में वो रहता है, लेकिन वहाँ पर जो है उसका पूरा अपना इख्तियार तो नहीं है लेकिन उसका कुछ असर है। जैसे आप गौर कीजिए, कहीं इलेक्शन हो रहा है और आप ये तस्वुर करते हैं कि नहीं वहाँ कुछ लोग जो बहकावे में आ सकते हैं, तो वहाँ पर जो है अपने ज़रिए से, अपने दोस्तों के ज़रिए से, अपने जानने वालों के ज़रिए से इसके लिए राय देना और सलाह देना ज़रूरी है कि इस तरीक़े का मामला है, इसके मुतालिक आप लोग होशियार रहें। लेकिन मामला यह है कि इसका कुल्ली इख्तियार उस पर नहीं है, यानी कुल्ली तौर पर ज़बरदस्ती किसी को अपने हक़ में नहीं ला सकता है। ये दूसरी शक्ल हो गई जिसे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। और उसके बाद तीसरी शक्ल ये है कि जोन ऑफ कंट्रोल, तो ऐसी जगह पर इसका अपना इख्तियार हासिल करना, यानी अपने इख्तियारात को उसके अंदर बरोए कार लाना इसके लिए ज़रूरी है। जैसे उसकी मिसाल देते हैं कि घर के अपने बच्चे हैं, माँ बाप हैं, तो बच्चों पर माँ बाप का ये जोन ऑफ कंट्रोल है। उनको कानून सिखाए, उनको तरबियत सिखाए और उनको ये चीज़ सिखाए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के कानून की पासदारी हमारे लिए ज़रूरी है जो चीज़। और इसी तरीके से दूसरी मिसाल कि एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, उसके क्लास के जो बच्चे हैं, उसके स्कूल के जो बच्चे हैं, उन पर जो है ये इसका
ये जोन ऑफ कंट्रोल है ये, यानी उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियारात एक टीचर को हासिल होते हैं कि बच्चों की तरबियत किस तरीके से करे। तो उसके ताल्लुक़ से ये पहले ताल्लुक़ से 3 बातें हमारे सामने कि ऐसी शक्ल में ज़रूरी है कि अपने बच्चों को या जिस जगह पर जोन ऑफ कंट्रोल में है, ऑफिस में वहाँ पर इसका कंट्रोल है, अब उस ऑफिस में चाहिए कि वहाँ पर कोई गबन का काम, कोई इसी तरीके से दूसरी गलत चीज़ें वो ना होने दे, जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत एक्टिविटी है उसे बिल्कुल ना होने दे, उस पर कंट्रोल करना इसके लिए ज़रूरी है। या अगर मुल्क के ख़िलाफ़ या इसी तरीके से किसी शहर के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है और इसका जो है वहाँ पर जोन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर उसे ये कंट्रोल कर सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको तंबीह करें और वहाँ से उस चीज़ को निकाले। ये हमारी ज़िम्मेदारी है आइन के एतबार से, कानून के एतबार से ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि कोई ऐसी अगर एक्टिविटी देखें जो कि देश के ख़िलाफ़ हो, कोई ऐसी एक्टिविटी देखें जो कि शहर के ख़िलाफ़ हो, तो ये एक मुसलमान होने की हैसियत से ही नहीं बल्कि एक शहरी होने की हैसियत से हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उसमें हिस्सा ना लें, और हिस्सा ना लेने के बजाय हम उसको वहाँ से दूर करने की कोशिश करें, उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करें। और उसके बाद दूसरी चीज़ कि मूल कर्तव्य का पालन करना, यानी अपने आप को देश के लिए फ़ायदेमंद बनाना, तालीम के ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से, या हिंदुस्तान के लिए या जिस मुल्क में रहता है वो उसके लिए कोई चीज़ क्या फ़ायदेमंद हो सकती है उसकी एक्टिविटी हमारे लिए ज़रूरी है। तालीम के ज़रिए से, एजुकेशन के ज़रिए से, या कोई ऐसी चीज़ ईजाद करें जो कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, ये हमारे लिए ज़रूरी है। नंबर 2 की बात। और फिर उसके बाद तीसरी और आखिरी बात यह है कि समाज की बुराइयों से एक शहरी होने के एतबार से इस्लाम हमें उन सारी चीज़ों का हुक्म देता है, लेकिन क़ानून के एतबार से भी एक शहरी होने के एतबार से जिस शहर में आदमी रहता है, जिस महल्ले में आदमी रहता है, वहाँ पर उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि समाजी बुराइयों से वो टकराए। समाजी जो बुराइयाँ हैं, क्योंकि जो बुराई शहर में शुरू होती है वो एक दिन महल्ले में ज़रूर आती है, और जो बुराई महल्ले में आती है वो एक दिन हमारे घर में ज़रूर आती है। तो अपने घर की हिफाजत के लिए, अपने महल्ले की हिफाजत के लिए, अपने शहर की हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि आदमी उन बुराइयों से सामना करने की ताकत अपने अंदर पैदा करे। और उसके ताल्लुक़ से आप देखेंगे कि जातिवाद, यानी ज़ात का बढ़ावा देना, ये हमारी ज़ात का है, वो उसकी ज़ात का है, वो उसकी ज़ात का है, इस तरीक़े से नफ़रत फैलाना ये एक मुसलमान ही नहीं बल्कि एक शहरी के लिए भी ज़ेब नहीं देता है, क्योंकि इससे बंटवारे की बू आती है। लोग अलग अलग फ़िरक़ों में, लोग अलग अलग ज़ातियों में अपने आप को तक़सीम करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी चीज़ इलाक़ाई वाद, यानी क्षेत्रवाद जिसे कहा जाता है, ये आदमी यहाँ का है, वो आदमी वहाँ का, कहीं का भी एक इंसान है, और इंसान अगर है तो इंसानियत दिखाना उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है। उसके दुख में, उसकी मुसीबत में, उसकी परेशानी में, उसकी ज़रूरतों में हमारे लिए ज़रूरी है कि जहाँ तक हमारी इस्तिताअत है, जहाँ तक हमारी ताकत है, एक शहरी होने के एतबार से, एक इंसान होने के एतबार से हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके साथ खड़े रहें। और उसके बाद रंगवाद, भेदभाव, ये सारी चीज़ें देशभक्ति के ख़िलाफ़ हैं, एक सही शहरी होने के ख़िलाफ़ हैं कि आदमी किसी को भड़काए कि फ़लाँ रंग का है, फ़लाँ नस्ल का है। इस्लाम, देखिए, इस्लाम इन सारी चीज़ों की तालीमात देता है, लेकिन एक शहरी होने के एतबार से, एक शहर के अंदर रहने के एतबार से इन सारी चीज़ों का हमें इख्तियार करना ज़रूरी है, और वो सारी चीज़ें हमारे अपने अंदर आना ज़रूरी है उनका, कि जिससे किसी इंसान का फ़ायदा तो। और उसके बाद दूसरी चीज़, अगर किसी का नुकसान होता है, तो अगर हम किसी नुकसानदेह काम में शरीक होते हैं तो ये हमारी शहर से वफ़ादारी नहीं है, ये ना ही हमारी इंसानियत से वफ़ादारी है और ना ही हमारे शहर से वफ़ादारी है। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि ये कुछ चंद ज़रूरी बातें थीं कि जिनको हम अपने अंदर इख्तियार करके हम कानून की पासदारी कर सकते हैं। और कानून की पासदारी में चीज़ आप और जान लीजिए कि ये भी ज़रूरी है कि जो भी इंडिया के अंदर या इसी तरीके से जो कानून बनाए जाते हैं वो लोगों के फ़ायदे और नुकसान को रख करके बनाए जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग या इसी तरीके से कुछ
शर पसंद लोग उनको अपने तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उसका नुकसान एक अलग मसला है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमने 394 जो आइन बनाए हैं, इन आइन को बनाने वाले अगर सही रहेंगे, इनका इस्तेमाल अगर सही करेंगे तो ये कानून सही तरीके से इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर इनका नफाज करने वाले और इनको इस्तेमाल करने वाले गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका गलत इस्तेमाल होगा। ये कुछ चंद ज़रूरी बातें थी हमारे सामने। हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही चीज़ और सही इल्म हासिल करने और उसी के मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।